आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। At one moment, it was looking that there is an upset going to take place in the match against Pakistan versus Netherlands, the second match of the World Cup 2023 for the men's. But it didn't happen. It was Pakistan who won that match in style with 81 runs, and that's good margin as far as one-day cricket is concerned. But in the first half an hour or so, Netherlands was absolutely on top the way they bowled 38 for 3 and then a good partnership of 120 plus runs. And after that, Shadab Khan and Nawaz played a crucial role. He is an important batter as well as bowler in Pakistani lineup. So in the end, it was a good game for so many players for Pakistan. Saud Safiq played fantastic knock, attacking. He was very aggressive as well. So, by virtue of these innings of some figures, Pakistan managed to defeat Netherlands with a margin of 81 runs. Batted first, scored 286 for the loss of 10 wickets in 50 overs, 49 overs, sorry. 1 over was remaining to be played. And in reply, Netherlands got a good start. Solid, but not steady. They lost early wicket, and after that, a good partnership. It was at one stage looking like they are going with great guns. Two of their players were fantastic. Vikramjeet Singh and the other opener was looking good. But in the end, as I earlier said, Pakistan managed to defeat them with a good margin or good amount of runs. So that is what happened in the second match of the ICC Men's Cricket World Cup. And Asian Games is also needs to be discussed, where India will take on Afghanistan for the gold medal, and Bangladesh and Pakistan are playing for the third place. If I talk about more, two matches will be played today in World Cup 2023. That is Afghanistan versus Sri Lanka and Bangladesh and South Africa versus Sri Lanka. So two matches will be played today, a doubleheader, first doubleheader of the World Cup. Now, welcome back, both the gentlemen from their respective place. Samrat ji from Hamirpur, Uttar Pradesh, Ramkishan ji from Lucknow, Uttar Pradesh. How are you all? Good morning. श्रोताओं को नमस्कार। बिल्कुल, सभी को प्रेम पूर्ण मेरा नमस्कार। और जी, हम बहुत बढ़िया हैं। I always hope कि आप अच्छे रहो, क्योंकि अच्छे रहोगे तभी शो हो सकता है। और आजकल तो बड़ा अच्छा समय चुना है हम लोगों ने शो करने का। अच्छा लगता है, सुबह सुबह ताजगी से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर आदमी रहता है और दर्शकों को भी अच्छा लगता होगा। ऐसे मैं कम से कम कई विचारों को देख पाया हूँ, सुन पाया हूँ, इससे मुझे ये प्रतीत हुआ। खैर चलिए, अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं। वैसे भारत के गोल्ड भी ठीक ठाक है इस एशियन गेम्स में, और पदकों की संख्या 95 के आसपास है। 100 पार होने की उम्मीद है, लगता है इस बार। जी हाँ, उस पे आगे बात होगी। तो चलिए, अच्छा, मैच के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बता ही दी, क्या हुआ कैसे हुआ। अगर फिर भी आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास रामकृष्ण जी से बेहतर कोई विकल्प है नहीं अभी वर्तमान की स्थिति में। समृद्धि भी उन्हीं के समकक्षी हैं, तो जरा दोनों से एक बार, एक टीम का पूरा लेखा जोखा समृद्धि और एक टीम का पूरा लेखा जोखा आप अभी रामकृष्ण जी की जुबानी सुनेंगे। चलिए जी, तो कहाँ से शुरुआत की जाए? पहले पाकिस्तान की बैटिंग ले लेते हैं। हाँ जी, तो हुआ ऐसा कि नीदरलैंड ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया नीदरलैंड के कैप्टन एडवर्ड ने, और एक सही फैसला मेरे हिसाब से था। उस ऐसे विकेट पे जिसपे कि जो कि शुरू में थोड़ा कवर्ड रहा है, और शुरू में थोड़ा पहले 1 घंटे मदद थी, पूरा मदद का फायदा उठाया और
खराब शॉट सिलेक्शन भी कह सकते हैं पाकिस्तान का। एक समय 36 पे 3 हो गए थे। 36 पे 3 यदि आप सुनेंगे कौन कौन, फखर जमान, बाबर, और फिर तीसरा विकेट इमाम का भी चला गया था। तो उसके बाद एक लंबी चौड़ी साझेदारी बुनी गई, सौद शकील और कौन भूल सकता है मोहम्मद रिजवान को। हमेशा जब जब पाकिस्तान मुश्किल में रहा है, मोहम्मद रिजवान ने वो पारी को संभाला है और पाकिस्तान की नैया के खेवैया बन के उनको भंवर से पार निकाल के वो गए हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 120 रन प्लस की साझेदारी हुई। 36 पे 3 होने के बाद उम्मीद हर कोई कर रहा होगा ऐसा ना हो वैसा ना हो, कहीं पाकिस्तान धराशाही फिर से ना हो जाए। एक मन में शंकाएं पनप रही थी। उसी दौरान आनंद फानन में उन्होंने रन बनाने शुरू किए और सौद शकील ने अपना दावा ठोक दिया है कि 5 नंबर के सलमान आगा नहीं, कोई और नहीं, मैं खुद उसका 5 नंबर का कंटेंडर हूँ। वहीं पे एक साझेदारी हुई, शत की साझेदारी, और उस साझेदारी को भी तोड़ा गया बड़े नाटकीय अंदाज में। मैं आपको बताऊं, वो साझेदारी टूटी, 68 रन बना के सौद शकील आउट हुए और सौद शकील के आउट होने के बाद बहुत जल्दी 2 विकेटें और खोई, वो भी एक ही ओवर में। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार, बेस दिल्ली ने, यदि मैं सही कह रहा हूँ, उन्होंने 4 विकेट का हॉल लिया जब पूरी पारी का समापन हुआ, जिनमें 2-2 विकेट करके उन्होंने लिए। पहले 2 विकेट लिए उन्होंने और उसके बाद फिर 2 विकेट लिए, यानी 2 ओवरों में 2-2 विकेट लिए। एक समय ऐसा था कि हैट्रिक पे थे वो, जब हसन अली और शादाब को उन्होंने आउट किया था। हाँ, तो मैं वो बता रहा था, सौद शकील और रिजवान के आउट होने के बाद इफ्तिखार आउट हुए। एक समय 188 पे 6 हो गया था। फिर एक साझेदारी, ठीक ठाक साझेदारी बुनी गई। जो कहते हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर हमेशा तंग करते हैं, मोहम्मद नवाज और शादाब, कौन भूल सकता है। शादाब की गेंदें बेशक ना चल रही हूँ, मगर बैटर तो शादाब क्या कह सकते हैं उनको, बेहिसाब बैटिंग करते हैं। वाकई मजा आ गया देख करके। फिर एक साझेदारी हुई और फिर वही साझेदारी तोड़ी किसने, वेस्ट दिल्ली ने। तो वो साझेदारी टूटी, साथ में हसन अली भी आउट हुए और एक समय 8 विकेट गिर गए थे, लेकिन नवाज ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। क्या बेहतरीन बैटिंग की। तो यही रहा और 286 रन बनाए 49 ओवरों की समाप्ति पर, जिनमें 4 विकेट लिए वेस्ट दिल्ली ने, जो कि टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में रहे। और रनों के लिहाज से रिजवान और सौद शकील ने 68 रनों का योगदान दिया। जी, ये रही दोनों का बता ही दिया आपने, क्या बोल जी। मतलब बड़ी उम्मीदें थी फखर जमान से। फखर जमान ने 12 रन बनाए, इमामुल हक ने 15 रन बनाए, बाबर आजम ने 5 रन बनाए, सौद शकील ने और रिजवान ने 68 रन की अच्छी पारी खेली। इफ्तिखार अहमद ने 9 रन बनाए, मोहम्मद नवाज 39, शादाब खान 32, हसन अली ने खाता नहीं खोला, अफरीदी ने 13 रन बनाए, रऊफ ने 16 रन बनाए और एक्स्ट्रा 9। तो इन रनों के मदद से पाकिस्तान 286 तक पहुंच पाया। और विकेटों का जैसे पूरी कहानी आपने बताई, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर अगर कोई था नीदरलैंड की टीम में तो वो थे आर्यन दत्त। 10 ओवर की उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, हालांकि विकेट लेस रहे, बल्कि 1 विकेट लिया था उन्होंने। 10 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट। तो और एक बॉलर है वैन वीक, 6 ओवर, तो उसको ही आउट किया था, इफ्तिखार या स्टील में से किसी को आउट किया था आर्यन ने। वैन वीक 6 ओवर किसी को किया था। नहीं, इफ्तिखार को आउट नहीं किया था, मेरे हिसाब से सौद शकील को आउट किया। हाँ, वही, इसीलिए मैंने इफ्तिखार और रिजवान दोनों जो है वेस्ट दिल्ली के खिलाफ आउट हुए थे। इफ्तिखार और रिजवान दो में से एक को किया था। तो वैन वीक ने 6 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिया। अक्रमण ने 8 ओवर में 1 मिडन
रखते हुए 39 रन देकर 2 विकेट लिए। वेन विकरन वेन विकरन का गेंदबाजी विश्लेषण 6 ओवर 40 रन 1 विकेट, बास द लीड 9 ओवर, यही कोई 4 मिडल विकेट नहीं, लिए इन्होंने। 62 रन और 4 विकेट। जी वेंडर हाँ, मैं मर्फ इन्हीं की बात कर रहा था। और वंडर मर्फ इन्होंने बैटिंग में भी इन्होंने अर्धशतक लगाया है, भूलना नहीं चाहिए हमें। हाँ दोस्तों, वो क्वालिफायर में लगाया था ना, और नहीं भी आज नहीं, कई जगह और भी, कल भी लगाया था यार, मैं कल की कल बात के कर मैच रहा में हूँ। लगाया था, कल बिल्कुल। भी लगाया था, हम्म, कल अर्धशतक लगाया था उसने। तो हम्म, 158 पे चौथा विकेट गया, क्योंकि 38 तक पहुंचते पहुंचते मैंने आपको बता ही दिया था। अच्छा, 34 तक। फास्ट टिलेमी के पिताजी 2003 के वर्ल्ड जी कप हाँ। में खेले थे। हाँ, भारत के बिल्कुल। खिलाफ उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल 4 द्रविड़ का विकेटें ली विकेट थी। लिया था। जी हाँ, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अच्छा, एक और चीज थी, पाकिस्तान बल्कि नीदरलैंड की टीम में एक प्लेयर थे, नंबर 4-5 पे बैटिंग करने आए थे, भारतीय मूल के, हैदराबाद से 100-150 किलोमीटर दूर विजयवाड़ा में जन्मे वो। उसके बाद वहाँ नीदरलैंड चले गए, वहां से क्रिकेट खेली। उनका परिवार आया हुआ था मैच देखने। बड़ा भावुक पल होता है इस तरह का, जब आप अपने देश, जहाँ आपका परिवार रहा या है, वहां के बजाय आप किसी और देश से खेलते हो। ये भारत में शायद टैलेंट ज्यादा है, इसकी वजह से शायद भारत के कई प्लेयर्स भारत को छोड़कर कई और कंट्रीज में खेलते हैं, रिप्रेजेंट करते, फिर भारत के खिलाफ आके खेलते हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब लम्हा होता है। खैर, अच्छा सम्राट जी, हंसी मजाक हम बड़ा भी कर लेते हैं शोज में, अच्छा लगता है। नीदरलैंड अनुभवी टीम नहीं, एसोसिएट नेशन, बट अगेन पाकिस्तान को कम से कम मैच के कुछ हिस्से में ही सही, लेकिन घुटनों पर आने पर विवश कर दिया। देखिए, रन कितने भी बन जाएं, लेकिन ऑल आउट कर दिया, वो भी एक बड़ी बात है। और जो 2003-4 की बात हम कर रहे थे, उसमें भी भारत को ऑल आउट ही किया था। जब इनके पिताजी ने 4 विकेटें ली थी, तो 220-25 से, शायद जहाँ तक मुझे याद आता है, 220-25 से हम लोग आउट हो गए थे, और 120-25 से इनको आउट कर दिए थे। उसमें इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी, और फील्डिंग नीदरलैंड की, सॉरी, कल भी कुछ हद तक जो है बहुत अच्छी रही है। अगर 10 ओवर, वो 38 रन पे 3 विकेट थे, उसके बाद भी जो फील्डिंग स्तर रहा, वो काफी ओवरों तक तो ठीक ठाक रहा। और वैसा ही पहले भी, कि सचिन ने उस मैच में, जिस मैच की बात कर रहा था, 70 गेंद खेल के 50 रन सचिन ने बनाए थे, और शायद वो सबसे ज्यादा थे। तो ये है कि जिस तरीके से स्तर रहा, आयरलैंड, नीदरलैंड वगैरह इतनी अच्छी टीमें नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली टीमें हैं भी। और पाकिस्तान को जिस हिसाब से बैकफुट पर रखा और ऑल आउट किया, वो सचमुच काबिले तारीफ है। बाकी तो पाकिस्तान एवरेज थे ही उस मैच में। लेकिन जहाँ तक, अगर रामकिशन जी ने कहा था कि टॉस जीत के फील्डिंग सही फैसला था, लेकिन मैं मानता हूँ यार, अगर कुछ पहले खेल लेते तो कुछ भी बन जाते, जो भी बन जाते, वो बोनस होता। लेकिन बट ठीक है, जो भी है। हाँ, एडवर्ड का अपना फैसला था, और उस पर उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली। जब 34 for 3 हो गया पाकिस्तान, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान पूरे 50 ओवर न खेल पाए, हालांकि हुआ भी वैसा ही। वो एक अलग बात है, 49 ओवर ही खेल सका पाकिस्तान, लेकिन रन काफी थे, 286 रन बहुत होते हैं। और काफी रन थे। हैदराबाद जैसी पिच पर आप समझिए 14 बार पाकिस्तान ने, जब भी वर्ल्ड कप की बात मैं कर रहा हूँ, 270 के प्लस रन बनाए हैं, कोई टीम उनको हरा नहीं पाई है। तो ये यूं भी मुश्किल था नीदरलैंड के लिए चेस करना उस रन को। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब वो मैच में बहुत अच्छे से जा रहे थे, बट तो जल्दी जल्दी विकेट गिरे, उसमें फिर विकेट गिरते चले गए। उनके बहुत देर तक 2 विकेट थे, उसके बाद ऐसा लगा कि चलो यार ठीक है, मजा आएगा मैच में, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका, और आखिरकार नीदरलैंड को मुंह की खानी पड़ी। देखिए, मुझे केवल 15-16 ओवर तक ऐसा लगा था, केवल 15-16 ओवर तक, कि शायद वो मैच में है। और 17वें-18वें ओवर से एक तो रन औसत डाउन होता चला गया, दूसरी बात विकेटें गिरती चली गई। और डिलेनी के अलावा किसी ने बहुत अच्छी बैटिंग, इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की कि जिसका वर्णन किया जा सके। तो 205 अच्छा, वो जो हैरी राउफ के जो 2 विकेटें मिली,
वो उसी ओवर में तीसरा भी हो जाता अगर वो कैच न छूटता। तो वहां से मतलब 17 के बाद कहीं पे भी लगा नहीं कि नीदरलैंड मैच में है। रामकृष्ण जी, पाकिस्तान का अप्रोच, बैटिंग अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं, आपको ठीक लगा या फिर अभी भी कुछ गुंजाइश है सुधार की? क्योंकि उनके जो अपने कमेंटेटर्स वगैरह थे वो भी यही कह रहे थे कि जी 320 के आसपास जाना चाहिए था इस पिच पर और इस टीम के अगेंस्ट। हाँ जी, देखिए ये जो विकेट है ना, ये विकेट सही मायने में 325 वाला विकेट है, ये 290 वाला विकेट है ही नहीं। सही मायने में बिल्कुल उनकी बात सही है। और मैं बार बार कहता रहा हूँ, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि फखर जमान को बार बार क्यों मौके दिए जा रहे हैं? मेरे को ये चीज बड़ी अखर रही है, बड़ी समझ से परे है। मैं उनको इतना नोट कर रहा हूँ। वो अलग मसला है कि भारत ने जब से पाकिस्तान को हराया है, तब से पाकिस्तान वो विश्वास हासिल नहीं कर पाया है। कारण जो भी हो, विश्वास हासिल हो नहीं पाया। पहले भारत ने हराया, फिर एशिया कप में फिर लंका ने भी परास्त किया, और उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल हुई जिन्होंने उनका मनोबल तोड़ा ही है, ना कि मनोबल को बढ़ाया है। मैं मानता हूं फखर को अब काफी मौके मिल गए हैं। अब पाकिस्तानी आवाम में बार बार ये बात उठाई जा रही है, आखिर आप अब्दुल्ला शफीक को ले गए हैं, इतने बेहतरीन ओपनर है, काफी नाम है उनका। भले थोड़ी अप्रोच में समस्या हो सकती है, थोड़ी अप्रोच टेस्ट क्रिकेट वाली अप्रोच है, मैं मानता हूँ, क्रिकेट खेलते मैं भी मानता अच्छा। हूँ टेस्ट क्रिकेट वाली अप्रोच है। लेकिन जब आपके पास इमाम जैसा अच्छा प्लेयर है और वो अटैक कर सकता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब्दुल शफीक के साथ जाना चाहिए। और फखर को मेरे हिसाब से काफी मौके मिल गए हैं, नहीं वो ठीक खेला। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो शुरुआत होती है ना, वहां से बाबर आजम पे प्रेशर आता है और पूरी टीम प्रेशर में निस्ते नाबूद हो जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, बाबर आजम की इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती है, जैसे एक जमाने में सचिन के इर्द गिर्द भारत की पूरी टीम घूमती थी। हालांकि भारत के पास और बैट्समैन बेहतर थे, सौरभ गांगुली हो, द्रविड़ हो, मोहम्मद कैफ हो, युवराज सिंह हो, सहवाग हो, तमाम बैट्समैन थे। उसके बाद भी सचिन का एक अलग ही रुतबा था, अलग ही ऑरा था उनका। सचिन सभी टीमें ये कहती थी कि सचिन के लिए ही हमारी मीटिंग का 10 मिनट जो है वो सचिन के नाम ही रहता है कि सचिन को आउट कैसे करना है। और विराट कोहली और बाबर आजम जैसे प्लेयर्स आज जिन पर सभी टीमों की निगाहें रहती हैं, जो भी विपक्षी टीम हो उनके अगेंस्ट, तो हालांकि बाबर आजम पर विराट कोहली का बहुत इम्पैक्ट है, ये उन्होंने खुद स्वीकार भी किया है और नजर भी आता है उनकी बैटिंग में। हालांकि बीच में कुछ वो लीन पैच से गुजर रहे हैं, हालांकि अभ्यास मैच उनका ठीक रहा, लेकिन फिर भी बड़े मैचेस में क्या बाबर आजम पाकिस्तान को एक स्टडीनेस प्रोवाइड कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इस पर धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन आता रहेगा। खैर, नीदरलैंड जैसी एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। आपकी बात से याद आई मुझे वो बात कि बाबर आजम के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। वो ये है, बाबर आजम जो महत्वपूर्ण मैच होते हैं, जो क्रंच मैच होते हैं, यही बाबर आजम और कोहली में फर्क मैं नहीं कह रहा, लोग बताते हैं जिन्होंने इसको देखा है बड़े करीब से, कि बाबर आजम बड़े मैचों के खिलाड़ी नहीं है। बाबर आजम आपको छोटे मैचों में दिखेंगे, फाइनल में, सेमीज में, ऐसे मैचों पे बाबर आजम के रन पता नहीं क्यों आते नहीं है, नर्वसनेस है या जो भी हो। वहीं विराट कोहली आप देखिए अभ्यास में नहीं चलेंगे, आप देखिए हो सकता है लीग मैचों में भी शायद ना चलें, लेकिन यदि आप सेमीज और फाइनल में पहुंचते हैं और वहां पे जब टारगेट का पीछा करते हैं, तो 100 में से आप 85 या 90% मानिए कि विराट कोहली का बैट निश्चित ही चलेगा। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। अच्छा, एक और बड़ा सवाल पाकिस्तान, हाँ, नीदरलैंड और आयरलैंड की बात कर रहा था मैं। इन जैसी टीमों को, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के मौके मिलने चाहिए, क्योंकि हालांकि नीदरलैंड ने पाकिस्तान को बहुत खेला है इस बार, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ बहुत हद तक कमियां हैं। तो बड़ी टीमों के अगेंस्ट छोटी टीमों को मौका दिया जाना चाहिए और थोड़ा सा बड़ी टीमों को आगे आना चाहिए कि हाँ जी ठीक है, हम आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि एसोसिएट नेशंस
के अगेंस्ट लोग जल्दी से खेलते नहीं है। ये मुझे लगता है आईसीसी को भी इसमें थोड़ी दखल-अंदाज़ी करनी चाहिए और बोर्ड्स को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप 10 लोग ही मिलके पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर या फ्रेटर्निटी पर राज करते रहो तो ये ठीक नहीं है। ये अनहोनी भरी देखिए चीजें हैं, कई बार ये देखिए महंगा भी पड़ जाता है। नहीं देखिए देखिए मुझे लगता है कि आपकी सोच से मेरी सोच तो कम से कम मेल नहीं खाएगी। इसका कारण है, देखिए तो यदि बड़ी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं, एसोसिएट देश खेलते हैं, तो उनका यदि वो हारेंगे तो कॉन्फिडेंस उनका लूज मोरल होगा, ये डाउन हो सकता है। उनका मोरल डाउन होगा, ठीक है। अच्छा, वो अपने बराबर वालों से खेलेंगे। आप देखिए नीदरलैंड का मोरल क्यों हाई है, क्योंकि अभी वो जो अभी क्वालिफायर खेल के आया अपने बराबर की टीमों से उसने मुकाबला किया है, इसीलिए उनका मोरल हाई है ना। यहीं पे अगर वो बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, हारेंगे, मुझे लगता है वो क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय नीचे रहेगी। इसका एक ही रास्ता है कि हर किसी को बराबर वाले से कोशिश करें कि वो कंपटीशन हो, बराबर हो, और इनसे दो दर्जे की चीजें हम बनाएं। या आईसीसी को सोचना पड़ेगा, जैसे कि क्वालिफायर वाला ये जो एशियन गेम्स का जो स्तर था, जैसे ये बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छा मुझे लगा, समझ के देख करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसमें भी एक कमी है कि आप बड़ी टीमों को सीधे एंट्री ना दें, बिल्कुल। उसमें भी कोई ना कोई फंडा आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बड़ी टीमों से खेलने की अपेक्षा उनको आपस में ज्यादा से ज्यादा स्पर्धा करनी चाहिए। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक हो सकती है, बट कई बार साल में ऐसे मौके कुछ मिलने चाहिए ताकि उनको ये पता लगे कि लेवल ऑफ इंटेंसिटी है क्या, क्योंकि छोटी टीमों का सोच और उनका एग्रेशन अलग होगा, बड़ी टीमों की सोच और एग्रेशन अलग होगा। तो उनको एटलीस्ट ये पता करने का मौका मिलना चाहिए कि जी बड़ी टीमें हैं वो कैसे सोचती हैं, क्रंच मैचेस में क्या करती हैं। ठीक है, वो हारेंगे, नो डाउट, उनका मोराल भी डाउन होगा, ये भी बात ठीक है आपकी, लेकिन साल में फिर भी मैं समझता हूँ एक एक सीरीज उनको देश बड़े देशों से मिलनी चाहिए। खैर, ये अपनी अपनी सबकी हाँ, कभी ना कभी तो जीतेंगे भी, और का उत्साह भी जो है बिल्कुल। मतलब जब इतना क्रिकेट होगा तो यार। हम्म, केन्या भी सेमीफाइनल में गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, 2003 का वो दौर कौन भूल सकता है। वो भी दुआओं के सहारे। नहीं, वो कैसे भी गई वो थी, देखो कैसे आप भी ही गई कल कह थी। रहे थे अगर मगर चलता नहीं। ना ना ठीक है, चलो। खैर, मैं क्या बोलने जा रहा था अभी बीच में। ये अब यदि पाकिस्तान बात पर ये मैं कह रहा था, शादाब खान को लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं, विकेट लेस जा रहे थे, हालांकि कल उन्हें विकेट मिला एक। तो वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या हम शादाब खान की जगह पर उसामा मीर के साथ जा सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर वो उसामा मीर के साथ जाएंगे, वाइस कैप्टनसी किसको छीन के दी जाएगी? क्योंकि वो अपॉइंटेड वाइस कैप्टन है पाकिस्तान के। तो ये सब अभी एशियन गेम में भी है शायद, आज या कल से जुड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, उसामा मीर वहाँ नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसामा मीर नाम तो है यार देखिए- वहाँ पे। देखिए बात क्या है, मेरे हिसाब से शादाब की जगह नवाज के साथ ये आप कर सकते हैं, मगर फिलहाल शादाब के बारे में सोचना ठीक नहीं है। नहीं, शादाब अच्छा ऑलराउंडर है यार। बिल्कुल। भाई शादाब अच्छी पारियां खेल सकता तो है। ये है। अब मुझे लगता है कि काफी हमने मतलब बातचीत कर ली है इस मुद्दे पे। अच्छा, एक चीज है, मेरा काउंटर सवाल है आप दोनों से कि आखिर क्या ऐसी गलती हुई 36-3 होने के बाद जो नीदरलैंड कंट्रोल नहीं कर पाया? सम्राट जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए 36 पे 3 आउट होने के बाद में 38 पे 3 था, तो 38 पे 3 आउट होने के बाद में मतलब कुल मिला के जो पार्टनरशिप उन्होंने पनपने दी और जो कुछ कैसे छोड़े वहां से, और कितनी भी गिरी से गिरी हालत हो 260-65 तो पाकिस्तान लग ही रहा था। ये अनुभव और मजबूत की बात है, क्योंकि 2016 में जो ये पांड्या और के साथ बांग्लादेश के साथ जो घटना घटी थी ना, वहाँ भी एक अनुभव की ही बात थी, जहाँ 3 गेंदों में शायद 2 या 3 रन चाहिए थे, जो भी है। तो सौम्या सरकार के आउट होते ही बांग्लादेश बिखरने लगा था चिन्ना स्वामी बेंगलोर में। तो कल जिस हिसाब से पार्टनरशिप उन्होंने पनपने दी, तो वहां से मतलब मैच काफी पलटता गया। और ऐसा नहीं है कि 38 पे 3 आउट होने के बाद
ये लग रहा हो कि नहीं ये 150 नहीं बना सकते, 200 नहीं बना सकते। जहाँ तक अनुभव की बात अगर करें, मजबूत और कमजोर की बात करें, तो मुझे कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं कि पाकिस्तान मतलब इतने सस्ते में आउट हो जाता है। पर हाँ, कमियों की बात है तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया तो वैसे वैसे उनका फील्डिंग और जो जिस हिसाब से कमजोरी उनकी है, कमजोर हैं वो, उस हिसाब से वो सब कुछ सामने आता गया। और फील्डिंग खासकर, जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे जैसे साझेदारी होती गई उनकी फील्डिंग खराब होती गई, और जो कैचे जा सकते थे वो छूटते चले गए तो साझेदारी बनती गई। तो मतलब वही है कि जी अनुभव अनुभव है। तो ऐसा जी, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, एक चीज है, आपने कहा कि मुझे कहीं से नहीं लगा, ये है वो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये सवाल मेरा पूछने का मकसद ये है क्योंकि यदि हम सौद शकील और रिजवान को सस्ते में समेट लेते तो इफ्तिखार का बैट हाल फिलहाल चला नहीं है इतना। और ध्यान रहे, पाकिस्तान 6 कंटिन्यू बैटर के साथ खेल रहा है। शादाब तो वैसे भी हालिया फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो खैर, आजम जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि आखिर आपका क्या लगता है कि ये कहाँ चूक हो गई नीदरलैंड से कि नहीं जो नहीं कंट्रोल नहीं हो पाया? नहीं नहीं, बात चूक की नहीं है, बात सिर्फ ये है एक्सपीरियंस की कमी। उन्होंने अब तक अपने बराबर की टीमों के साथ फाइट किया है, तो उन्हें शायद कमबैक करने की एबिलिटी अभी डेवलप नहीं हुई है उनके अंदर। अदरवाइज जिस स्थिति में वो थे ना, अगर पाकिस्तान के 1-2 विकेट गलती से भी गिर जाते तो शायद पूरी पाकिस्तानी टीम 150 175 के आसपास धाराशायी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हाँ, हो ना। मतलब इससे नीचे नहीं आउट हो सकती थी कुल मिला के, सीधी बात बिल्कुल। हाँ, वो तो मैं वही कह रहा हूँ। 175 से तो ढेर हो सकती थी। है। जी हाँ, बहरहाल तो हमने बहुत बात कर ली ये और क्रिकेट पे। याद ये और याद रहे कि आज यानी एशियाई गेम्स का भी फाइनल है और तीसरे प्लेस के लिए मैच। अब हम उस पर बात करेंगे। काफी बातें हो गई हैं इस मैच पे। तो जो बीते दिन जो कल हुआ, यानी कल तो 6 तारीख थी समथिंग। तो कल जो मैच था, सेमीज थे आई थिंक दोनों कल। तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो मैच हुआ। आजम जी, आपसे बात करूंगा कि आखिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, क्या आप इसकी उम्मीद आपने लगाई थी? यदि हाँ या ना, तो आखिर कहाँ चूक हुई? नहीं, मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। हालाँकि अफ़गानिस्तान की टीम अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं मुझे लगता है पाकिस्तान ने हल्के में ले लिया कि अरे ठीक है, अफ़गानिस्तान ही है, हम हरा देंगे, कोई बात नहीं। और उन्होंने पिछले मैच से कुछ सीखा नहीं। पिछले मैच में जो उनका हश्र हुआ, उससे उन्होंने कुछ भी सीखा नहीं। तो इस वजह से ये समस्या उनको आई। नहीं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेहतर टीम है, अफ़गानिस्तान के मुकाबले तो बेहतर टीम ही है एटलीस्ट। और मुझे ये भी लगता है शायद कि पाकिस्तान ने सिलेक्शन जिस तरह से चाइना की विकेट्स हैं, क्योंकि वहाँ क्रिकेट उतना होता नहीं है, तो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की विकेटें हैं वो, उस हिसाब से सिलेक्शन शायद ठीक नहीं किया। इस वजह से उनको मुंह की खानी पड़ रही है और वो आज तीसरे और चौथे प्लेस के लिए जो लड़ाइयाँ उनकी जारी है बांग्लादेश के बीच, वो खेलने पर उन्हें विवश करना पड़ा। और जी, वहाँ पिच में काफी स्पिन है, वहाँ विकेट छोटे हैं, यानी बाउंड्रीज छोटी हैं, मगर स्ट्रोक मेकिंग उतनी मुश्किल है, स्पिन है। इसका अंदाजा हमें तभी लग गया था जब कल भारत और बांग्लादेश ने दोनों ने एक एक पेसर ही अपनी टीम में इंक्लूड किया था। सम्राट जी, आपके पास मैं जाना चाहूंगा, अ, हम्म, जो हश्र हुआ एक समय, क्योंकि पहला मैच था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान और लंका का क्वार्टर फाइनल में, आपको ध्यान रहे तो अफगानिस्तान ने 116 रन बनाए थे और श्रीलंका को उन्होंने 100 पे रोक 108 समथिंग या 100 पे रोका 108 था। रन पे रोक दिया था। तो आप 108 9 पे बताइए रुका। सम्राट जी, आप बताइए, जब अब वो काम अफगानिस्तान कर सकता है और श्रीलंका के खिलाफ वो भी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं कर सकता? कि कौन सी ऐसी समस्याएं हुई जिनके कारण आखिरकार पाकिस्तान को एशियन गेम्स से कहीं ना कहीं
शुरुआती 2 स्थानों से दूर रहना पड़ा? देखिए ऐसा है कि पहली बार ऑन पेपर जो भी सेलेक्ट थी पाकिस्तान की टीम, उसमें ऑन पेपर तो पाकिस्तान था और अनुभव के हिसाब से पाकिस्तान था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वायलेंस लग रही थी, क्योंकि वो जो मैच एक हुआ था 116 वाला, जिसमें शायद बांग्लादेश के साथ या मलेशिया जो भी है, जी तो वो जो मैच बांग्लादेश जीती, 2 रन से जीते। जी। तो जो मैच हुआ था वहाँ पे लग रहा था कि मतलब अफगानिस्तान एक अच्छी साइड है, लेकिन पाकिस्तान बेटर साइड था। लेकिन यही है ना कि जिस दिन क्रिकेट में दिन है कि जिस दिन आप अच्छा करते हैं और जिस दिन आप जीतते हैं, आप उसी दिन सिकंदर हैं। और देखिए पेपर के हिसाब से तो पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन वैसे करीम जन्नत और गुलबदीन नाइब और भी एक आधे अच्छे प्लेयर थे। उस हिसाब से मुझे जो है ये लग रहा था कि अफगानिस्तान टक्कर दे सकती है, बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि फाइनल से पाकिस्तान को जो है बाहर कर सकती है, क्योंकि 80-90 चांसेस दिए थे हम लोग, या फिर और भी जो क्रिकेट की चर्चा करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे होंगे कि यार भारत पाकिस्तान का फाइनल होगा, भारत पाकिस्तान का फाइनल होगा। अफगानिस्तान को कोई देख ही नहीं रहा होगा कि अफगानिस्तान भी ऐसा कर सकता है। लेकिन वही बात है ना कि एक दिन पहले हम लोग समीक्षा करते हैं, लेकिन दूसरे दिन वही सच होता है जो मैदान से घट कर आता है सामने, और वही हम लोग को मानना पड़ता है। बट तो ये था कि हमें ये उम्मीद थी कि टक्कर तो दे सकता है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच में टक्कर तो खूब हुए हैं, लेकिन रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में गए हैं। बट कल जो हुआ, फटाफट बिल्कुल जी, निश्चित तौर से भारत और अफगानिस्तान का मैच है, दोनों में से बताओ भाई, गोल्ड मेडल आ रहा है? हाँ, इंडिया रहेगा, गोल्ड मेडल है यार। अब क्या बता दूं, वैसे इंडिया तो फेवरेट है ही, पर यार फेवरेट तो पाकिस्तान भी थे कल। नहीं तो भारत और अफगानिस्तान में बहुत अंतर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जितना अंतर है ना, उससे ज्यादा अंतर है। वैसे गोल्ड मेडल आ रहा है, गोल्ड है, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते यार कि वहाँ की पिचें इतनी खराब हैं। 116-17 देखो, 202 बनाई, नेपाल ने 180 तक पीछा कर दिया। देखिए वहाँ की पिचें निश्चित तौर से खराब है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। जो टीम 116 नहीं वहाँ चेज हो पा रहा, नहीं विकेटों में समस्या है। यदि भारत से आप वो पारी छोड़ दें जायसवाल की, तो आप देखिए उस मैच में गायकवाड़ या यूं कहें कोई नहीं खेल पा रहा था, उस विकेट पे कोई नहीं खेल पा रहा था। रिंकू ने खेला था थोड़ा आक्रामक खेल। विकेटें जो है निश्चित तौर से वहाँ की काफी स्लो है, स्पिन है, और इसका अंदाजा भारत को एक मैच बाद हुआ जब उन्होंने एक पेसर को कम करके एक स्पिनर को ऐड किया। वो ठीक था। लेकिन अच्छा, अब मुझे लगता है एक चीज पे हमें और बात करनी चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास अब बहुत कम है। तो हम एशियन गेम्स की भी अब कुछ शायद चर्चा कर ले। उससे पहले आज 2 मैच हैं, तीसरा स्थान के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच है। क्या मानेंगे, कान से पता किसका है आजम जी? I'll go with पाकिस्तान अगेन। एटलीस्ट बांग्लादेश के साथ तो ठीक कर सकते हैं। हालांकि बरसात की वजह से भी टॉस नहीं हो पाया। पाकिस्तान मेरा वोट रहेगा बांग्लादेश। क्योंकि अगर बारिश मैच होता है तो फिर पाकिस्तान, अब बारिश हो गई है तो और ज्यादा पाकिस्तान। मेरा वोट रहेगा वैसे यदि मैच होता है तो बांग्लादेश। आज वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस में फेवरेट्स? जी हाँ, आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, दूसरा साउथ अफ्रीका श्रीलंका वर्सेस फेवरेट दोनों मैचेस में अफगानिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश कौन जा रहा है? मेरे हिसाब से आई थिंक बांग्लादेश, लेकिन मैं बांग्लादेश माइट बी धर्मशाला में मैच है, क्योंकि धर्मशाला में वो मैच है। और दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका फेवरेट होगी मेरे हिसाब से।
समृद्ध जी, आप भी यही सोच रहे हैं या आपको लग रहा है अफगानिस्तान कुछ कमाल करेगी? नहीं, देखो मेरे हिसाब से अगर श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका की बात अगर की जाए तो श्रीलंका थोड़ा फेवरेट आगे होगा। मतलब पता नहीं मुझसे, अब रामकिशन जी आप सहमत हो या ना हो पता नहीं, या फिर अन्य श्रोता सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन श्रीलंका इन कंडीशनों से एशियन गेम थोड़ा सा कंडीशंस में खेल रहा है शायद, आगे होगी। इसीलिए आप कह रहे और बांग्लादेश और पाकिस्तान में अफगानिस्तान का जो धर्मशाला मैच होगा तो अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन वो स्पिनर्स की विकेट नहीं, वो तेज गेंदबाजों की विकेट है। तो बांग्लादेश फेवरेट इस मैच में, अफगानिस्तान के साथ जो होगा इसमें बांग्लादेश फेवरेट। और जो साउथ अफ्रीका श्रीलंका की बात है तो उसमें श्रीलंका मुझे थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है। तो फटाफट हम स्क्वाड की बात कर रहे थे। अब इंग्लैंड के स्क्वाड की यदि हम चर्चा करें तो वहाँ पे आपके बैटर में 4 नाम आते हैं। जो रूट, डेविड मलान, हैरी ब्रुक का भी नाम उस फहरिस्त में है। और वहीं पे अगर हम बात करें, उन्होंने 2 विकेट कीपर खिलाए हैं, जॉनी वेस्ट्रो और जॉर्ज बटलर के नाम से। और ऑलराउंडर उन्होंने काफी मात्रा में रखे हैं, मोइन अली, बेन स्टोक्स, डेविड विली, क्रिस वोक, सैम करन। वहीं पे गेंदबाजी की बात करें, मार्क वुड, रीस टॉपली, और यदि हम बात करें तो उनके पास आदिल रशीद जैसा भी एक प्लेयर है, स्पिनर है, जो कि काफी क्षमताएं उसके अंदर विद्यमान है। और यदि हम बात करें अब न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के बारे में आप सब जानते ही हैं। केन विलियमसन एकमात्र बैट्समैन उन्होंने खिलाया है और 6 उन्होंने ऑलराउंडर खिलाए हैं, जिनमें यदि मैं बात करूं तो मार्क चैपमैन, विल यंग, जिमी नीशम, मिचेल सेंटनर भी टीम का हिस्सा है। और वहीं पर डैरेल मिचेल और हेनरी निकल। विकेट कीपर्स 3 उन्होंने खिलाए हैं, टॉम लिसन, डेवोन कॉनवे, और एक और विकेट कीपर उनके साथ है, ग्लेन फिलिप्स। तो गेंदबाजी की बात करें तो फर्गुसन और आपके ट्रेंट बोल्ट, ईश सोढ़ी, और साथ में मैट हेनरी और टिम साउदी। तो ये है स्क्वाड। अब हम सीधे चलते हैं एशियन गेम्स की तरफ, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 95 मेडल जीत लिए हैं। एक करेक्शन करना चाहूंगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एथलेटिक्स, पिछले ही एपिसोड में एथलेटिक्स में हमने 39 जीते हैं। 39 नहीं, 29 पदक हमें एथलेटिक्स में मिले हैं। निशानेबाजी में 22 पदक मिले हैं, वहीं पे घुड़सवारी में मिले हैं, रोइंग में 5 पदक मिले हैं, कुश्ती में 4 पदक मिले हैं। अभी कल हमने एक और न्यूज है हमारे पास कि कल हमने हॉकी का, मेंस हॉकी का गोल्ड जीता। महिला हॉकी में भारत कांस्य पदक के लिए खेलेगा। यदि हम और आज संभवतः हम गेम्स हैं, काफी भारत के मेडल आने की उम्मीद है। भारत ने जापान को हरा के हॉकी में फाइनल जीता, यानी गोल्ड जीता। कबड्डी में भी गोल्ड आने की संभावना है। तो टोटल 95 हो गए हैं। कल इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, तो हम 100 के पार जाएंगे निश्चित तौर से। एक एक राय फटाफट। आजम जी, अब की बार 100 के पार, क्या ये सही है? सम्राट जी, मैंने कहा एक जमाना था जब अब की बार मोदी सरकार हो रहा था, और एक जमाना आई है तो हम कह रहे अब की बार 100 के पार। जी हाँ, तो बताइए। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 100 के पार। खैर अब मुझे लगता है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस एक अपडेट फटाफट दे देता हूँ कि जो एशिया कप, जो एशियन गेम्स है, उनके क्रिकेट मेंस का जो फाइनल होगा वो आप आकाशवाणी पे सीधे आप उसका आंखों देखा हाल का आनंद ले पाएंगे। तो गोल्ड मेडल लगभग पक्का है, अब कोई अगर अनहोनी ना हो तो। मतलब रेडियो वालों के पास बहुत काम है आज, वैसे पता है आपको? आज का भी काम है, 2 मैच वो वाले आने हैं और विश्व कप के और एक मैच ये आना है। आकाशवाणी आज बिजी रहने वाला है दिन भर। मुझे लगता है कि काफी हमने बातचीत कर ली है, शो काफी लंबा हो गया है, लेकिन खैर मुझे लगता है अब हम सबको इजाजत लेनी चाहिए। तो अब इस अंक में बस इतना ही।
हम सभी को दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और गुड बाय।